Namaskar. I welcome you all in our today's a very important session of political theory, which is about part 2 approach of behavioralism of political science. I mean to say that in our first session we had discussed about what is behavioralism approach of political science, in which we had discussed about the meaning of behavioralism and the origin of behavioralism. We also tried to know that why the concept you know tradition approach has been uh, discarded, and we have started adopting the new approach, which is behavioral approach of the political science. So this is the second part of the same topic. I mean to say behavioralism approach of the political science, and in this session we will be completing our topic, as I discussed, behavioralism approach of political science part 2. So I again would like to request you all to please pay attention to my words, ठीक है, and ध्यान से सुनिएगा. As I said earlier, that topic is very much important. In many examinations, you know, you are asked questions about behavioralism and the various aspects which are related with political science. So basically in this session, in our today's session, या मैं कहूँ कि in our second part of today's session, I would be discussing the basically characteristics of features of behavioralism as given by डेविड ईस्टन. आप सभी को पता है जो डेविड ईस्टन है उनको क्रेडिट जाता है, अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन के अंतर्गत बिहेवियरल अप्रोच को लाने का. और जैसा कि हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर टू में बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स थी, और जिसको प्रेडिक्ट नहीं किया गया था, जिसका हमारे पास रेजोल्यूशंस नहीं थे, जिसके पास हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे थे उसको हमारे को रिजॉल्व करने का वो साइंटिफिक बेस नहीं था. और एक चीज मैंने आपसे और शेयर करी थी, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो डिफरेंट कहूंगा कि जो वेरियस डिसिप्लिन थे, सोशल साइंस या अदर सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाले जो सब्जेक्ट्स थे और अन्य सब्जेक्ट्स भी थे, उसको एक साइंटिफिक इवैल्यूएशन हो रहा था, उनमें साइंटिफिक इवैल्यूएशन हो रहा था. लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस में इसमें साइंटिफिक बेस नहीं था, ये स्टिल इट वाज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल अप्रोच, फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स. तो डेविड एस्टन एस्टन ने बहुत ज्यादा यू नो इसमें योगदान दिया बिहेवियरल अप्रोच को, और बाद में वो पोस्ट बिहेवियरल पे लाए. तो आज हम वही डिस्कस करेंगे जो डेविड ईस्टन थे, उन्होंने जो हमारे को फीचर्स दिए बिहेवियरलिज्म की, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है. और कई बार क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं कि जो बिहेवियरलिज्म अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस का, उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच वर गिवन बाय डेविड ईस्टन, तो वो क्या थे, व्हाट वर दोस कैरेक्टरिस्टिक्स. सो विल गो वन बाय वन. देयर आर सम beautiful headings which you can go through. So I will start. There are basically 8 characteristics or features of behavioralism as given by David Easton, and number one is regularities. So first I will go one by one. Regularities, verification. The second one is verification. Third one is techniques. Fourth, quantification. Sixth, values. Seventh, systemization, and eighth, pure science and integration. So regulation, verification, techniques, quantification, value, systemization, and pure science and integration. Let me go through one by one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah, there are 8 characteristics, which I would say have been given by David Easton. So first, I'll go through the regularities. What is the regularities as far as political science or behavioral approach of political science is concerned? The behavioral, या हम कहेंगे कि the behavioralist hold the opinion that human behavior, despite its differences, show some remarkable uniformities in political behavior, which can be generalized and formulated in a systematic theory. The generalizations reached in political science can predict political phenomena. Though the political behavior is determined by so many factors and is not always uniform, yet it has been observed that human beings behave in certain respects in a more or less similar manner on different occasions. Voting behavior is the most striking example in this respect. It has been observed that the voters belonging to a particular caste
social status and economic position or profession vote for the same individual or political party in successive elections. From this, some generations can be made and the regularities in the political behavior can be predicted. Therefore, political, I would say, therefore, political behavioralist, there is some confusion. No? Okay. There are, तो जो डेविड वेस्टन है उन्होंने जो पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटिकल साइंस का जो बिहेवियरल अप्रोच दिया उसमें जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है रेगुलरिटीज उसमें अगर मैं उसका सार आपको बताऊं इफ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू कि हालांकि वो कहते हैं कि जो डिफरेंट ह्यूमन बीइंग मैं बात करूं डिफरेंट पीपल हु आर रिजाइडिंग इन एनी सोसाइटी उनका बहुत सारी उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस बट डिस्पाइट ऑफ दैट देयर आर मेनी एस्पेक्ट इन व्हिच there is uniformity okay especially in political behavior तो वो इसका एग्जांपल भी देते हैं वोटिंग बिहेवियर का जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ इलेक्शंस के टाइम होते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनकी टेंडेंसी ऐसी होती है कि कुछ पर्टिकुलर उनका एक क्राइटेरिया होता है अपने वोट को कास्ट करने का फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग कास्ट पर इस चीज पे ध्यान देते हैं या सोशल स्टेटस पे या इकोनॉमिक पोजीशन पे देते हैं या कुछ ये सोचते हैं कि इस पॉलिटिशियन को अगर हम चूज करेंगे या सत्ता में लाएंगे तो हमें हमें क्या बेनिफिट होगा तो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि उन्होंने किस आधार पर उसके व्यवहार को स्टडी करें फिर हमें पता लगे किस आधार पर अपने वोट को कास्ट किया तो इस तरीके से हम लोग ना केवल एक प्रेडिक्शंस की बात हम करें या ना केवल हम फिलोसफिकल बेस की बात करें या आधा दार्शनिक सिद्धांतों की बात करें एक एक उसका एक पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया होना चाहिए प्रॉपर किसी भी चीज को फाइंड आउट करने का तो वो यहाँ पर इस चीज को बड़े स्पष्ट और बड़े सहज तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत बिहेवियरल अप्रोच की बात करते हैं तो वो हम लोगों का या चाहे इंस्टीट्यूशन का व्यवहार है उसको हमारे लिए अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ओके नाउ सेकंड वन इज वेरिफिकेशन अब व्हाट डज इट से जहां तक वेरिफिकेशन या मैं बोलूं जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वेरिफिकेशन वो क्या कहता है इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे द बिहेवियरलिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग एज ए ग्रांटेड लाइक द ट्रेडिशनलिस्ट जो ट्रेडिशनल अप्रोच था पॉलिटिकल साइंस का वो किसी भी चीज को ऐसे ही स्वीकार कर लेते थे जैसे कि मान लो कोई समस्या आई वो लोग बैठे हैं जैसे मैंने आपको बताया था एथेंस में क्या हुआ करता था जो सिटी स्टेट थे वो लोग बैठा करते थे विचार विमर्श किया करते थे जो समस्याएं थी समाज की सोसाइटी की उस अगर उनके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती थी तो उसको तर्क चिंतन मनन के आधार पर उसको सॉल्व भी करते थे या जो जिस आधार पर अगर समस्या मिलती जुलती है वो जिस आधार पर उस समस्या को पहले सॉल्व किया गया था उसको उसी तरीके से वो रिजॉल्व करते हैं लेकिन बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो है या बिहेवियरल अप्रोच जो है पॉलिटिकल साइंस का वो इस चीज को मना करता है उस चीज को रिजेक्ट करता है and they do not believe in the abstract political theory rather than verified test everything anything which cannot verified or tested can be termed only as dogmatic dogmatic and not scientific आगे वो ये भी इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कहना चाहते हैं डेविड ईस्टन कि जो चीज साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है या जिसका साइंटिफिक बेस नहीं है जो एम्पिरिकल डेटा पे बेस्ड नहीं है ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है उस चीज को डिस्कार्ड करते हैं डिस्कार्ड करते हैं उस चीज को रिजेक्ट करते हैं उसको स्वीकार नहीं करते on the basis of those points I am sharing this thing which have been given by David Easton so they believe in empirical or scientific results only which can be achieved after scientific verification सीधी सीधी सी बात है कोई भी अगर हम रिजल्ट हमारे पास है और उसका एक साइंटिफिक बेस है तो उसको हम आगे जनरलाइज भी करते हैं और वही चीज हम वेरिफिकेशन के आधार पर स्वीकार भी करते हैं Now third one is techniques. The behavioralists emphasize the adoption of correct techniques for acquiring and interpreting the scientific data. Only then valid, reliable, and comparable data can be achieved. For this purpose, they suggest the use of sophisticated tools like the multivariate analysis, sample, surveys, mathematical methods, simulation, etc. Vigorously objecting to the traditionalists point out that data in social sciences can never be objective and
that technique shouldn't be exalted at the cost of content. So यहाँ पर as far as the third one, I mean the third heading is concerned, which is techniques. What does it say? Well, it says कि जैसा कि मैंने बात करी थी कि एम्पिरिकल बेस्ड रिसर्च या फिर मैं ऑब्जर्वेशन की हमने बात करी, साइंटिफिक बेस्ड की बात करी, या हम किसी चीज पे रिसर्च करते हैं, हम कुछ डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो देयर मस्ट बी प्रॉपर टेक्निक्स। वही बात कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी टेक्निक्स, और केवल क्वालिटेटिव मेथड पे ही जोर नहीं दिया जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम it is accepted that those data which are analyzed on the basis of quantitative method, those are more reliable। तो ये वही बात कर रहा है कि जो हमारे सामने समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, या समाज से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम उसमें कुछ एम्पिरिकल रिसर्च करते हैं, तो उसके लिए हम प्रॉपर टेक्निक्स अपनाते हैं, और बहुत टूल्स की ये बातें करता है, जैसे क्वेश्चन है, हमारे पास सर्विस है, सैंपल है, मैथमेटिकल मेथड है, उसमें हमारे टूल्स हैं बहुत सारे, जैसे क्वेश्चन वगैरह में आपको बताया, सर्वेस, इंटरव्यू, रेटिंग स्किल्स, चेकलिस्ट एटसेट्रा। तो ये बिहेवियरल एस्पेक्ट को और भी ज्यादा सपोर्ट करते हैं टेक्निक्स। द फोर्थ वन इज क्वांटिफिकेशन। व्हाट डज इट से? द बिहेवियरलिस्ट कंटेंट that a researcher cannot properly explain political phenomena, nor can be safely predicted. A political results for the future without measurement and quantification. For example, David Easton has observed precision in the recording of data, and the statement of their findings requires tables, graphs, and curves are drawn in behavioral researchers. Quantification, in the opinion of the traditionalist, on the other hand, is an unattainable goal and unmeasurable, and requires extremely precise concepts and metrics which political science does not possess. So here he talk about more and more quantifications methods, like he says that David Easton says that he has also given an example that David Easton has observed precision in recording of data, and the statement of their findings requires tables, graphs and curves are drawn in behavioral research. तो अगर हम एक ऑथेंटिकेशन चाहते हैं रिसर्च में, तो सीधी सी बात है, उसमें हमें क्वांटिटेटिव मेथड्स पे ज्यादा एम्फोसाइज करना पड़ेगा, रादर देन एम्फोसाइजिंग ऑन क्वालिटेटिव मेथड। वही चीज यहाँ पर बताना चाहते हैं, और सीधी सी बात है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच था पॉलिटिकल साइंस का, उसमें हम वी फोकस मोर ऑन क्वालिटेटिव काइंड ऑफ डेटा, बट एज फार एज behavioral approach of the political science is concerned, we focus on, yeah, we emphasize more on the quantification, yeah, quantitative data. Okay, is it clear? Now move on our next heading, values. So it is the greatest point of difference between the behavioralists and the traditionalists over the question of value neutrality. While the behavioralists believe in value-free study, the traditionalists believe in value-laden study. They contend that any value which cannot be tested empirically is an ethical value. For example, democracy, equality, or freedom are excellent values to uphold, but their truth or falsity cannot be proved in a scientific manner. Scientific inquiry, to be objective, therefore must be value free. On the other hand, if one prefers to vote for B instead of A, that value can be verified and measured. This value is therefore empirical in character. Consequently, the behavioralists reject only the ethical values and not empirical values. According to them, political science is a scientific study of politics in its functional aspects, carried through empirical methods, and has nothing to do with moral or ethical questions. On the other hand, the Tedinists hold the opinion that significant political issues invariably involve moral and ethical values, and political science cannot refuse to show concern with questions of right and wrong, even if it might not be possible to resolve them scientifically. So यहाँ पर contents या lines कुछ ज्यादा हो गए हैं as far as particular heading is concerned. He is talking about the values. यहाँ पर मैं simple तरीके से आप सभी के समझ इसको explain करूँगा. I would make it very clear for you.
कंसेप्ट क्लियर होगा। वैल्यूज जैसे कि सिंपल देखिए, कोशिश कीजिएगा समझने की, जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस का, उसके अंतर्गत जैसे कि हमको पता है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो बहुत ज्यादा फिलोसफिकल, उसका आधार जो दार्शनिक है, ठीक है, वो मूल्यों की बातें करते हैं, एथिक्स की बातें करते हैं, आदर्शों की बातें वो करता है, बहुत ज्यादा नॉर्मेटिव है। लेकिन जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स है या बिहेवियरल अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस का, वो एम्पिरिकल है, वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, फैक्ट्स पर बेस्ड है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर बड़े सिंपल टर्म में उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि जो हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं वो पॉलिटिकल साइंस का जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उस पे ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं, कि वो साइंटिफिक प्रूवन नहीं है, और उसके जो कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट्स हैं उसको हम जनरलाइज भी नहीं कर सकते। लेकिन जो बिहेवियरल अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस का, उसमें हम बड़े स्पष्ट तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि वो हमारी एम्पिरिकल डेटा पर बेस्ड है, उसका साइंटिफिक बेस है। ओके। उसमें हम किसी भी चीज की अगर समस्या हमारे सामने कोई आ रही है और किसी भी समस्या का हम समाधान या रिजॉल्व करते हैं, तो उसका जो आधार है वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, ना कि वो दार्शनिक है। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा उनका जो विश्वास है, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है जो फेवर करते हैं बिहेवियरल अप्रोच को, वो डेटा सर्वे, रिसर्च, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, एनालिसिस, या मैं बोलूं इवैल्यूएशंस, जनरलाइजेशंस, ये सारे टर्म्स वो यूज करते हैं। ठीक है। और फिर किसी कंक्लूजन पे आते हैं, और उस रिजल्ट को जनरलाइज भी किया जा सकता है। नाउ द सेकंड और सॉरी द नेक्स्ट और सिक्स्थ वन इज सिस्टमाइजेशन। तो as far as David Heston's characteristics of behavioral political behavior, या मैं बोलूं political approach is concerned, जो हमारा सिस्टमाइजेशन हेडिंग है उसके अंतर्गत वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि behavioralism believes that research in political science must be systematic, by which they mean that it must be theory oriented and theory directed, that theory and research should form as closely related parts of a coherent and orderly body of knowledge, and that research, untutored by the theory, may prove trivial and theory unsupported by data futile. आई एम श्योर कि आपको थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, लाइंस बहुत टेक्निकल हो गई है, बड़ी सीधी सी बात है। जैसा कि आपको मैंने बताया, जो हमारा पॉलिटिकल साइंस जो विषय है, जो पॉलिटिकल थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं डिसिप्लिन की बात में करूं, तो इट हैज गॉट टू वर्ड्स, पॉलिटिकल प्लस साइंस। तो जहां पर किसी भी शब्द डिसिप्लिन में साइंस वर्ड जुड़ गया, साइंस शब्द जुड़ गया, तो सीधी सी बात है उस डिसिप्लिन का, उसका मतलब क्या हो गया कि हमें उस डिसिप्लिन का सिस्टमेटिक वे में अध्ययन करना है। वी हैव टू स्टडी that particular discipline is systematic and proper way. तो here is talking about the systemization। सीधी सी बात है, जब हम नॉर्मेटिव अप्रोच को इग्नोर कर रहे हैं और हम इंपिरिकल डेटा पर फोकस कर रहे हैं, तो इसका जो स्टडी होगा सिस्टमेटिक वे में होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो आधार है वो साइंटिफिक होगा। उसमें मैं बात करूं सीधी सीधी की, वो जो रिसर्च होगी वो एम्पिरिकल रिसर्च होगी, ना कि वो नॉर्मेटिव होगी या फिर फिलोसफिकल प्रिंसिपल बेस्ड होगी। तो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो हमारा बिहेवियरल अप्रोच है वो फोकस करता है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग, या सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द पीपल। ठीक है। और उससे क्या होता है, वो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो बात कर रहे हैं हम बिहेवियरल अप्रोच की, वो पॉलिटिकल साइंस को और ज्यादा सपोर्ट करता है, उसको उसका प्रारूप क्या बनाने में, साइंटिफिक उसको दृष्टिकोण बनाने में। क्योंकि हम उसकी स्टडी केवल दार्शनिक या चिंतन मनन या मूल्यों के आधार पर नहीं कर रहे हैं, एक हमारे पास प्रॉपर वे है थ्रू विच वी प्रोसीड एंड वी गेट द रिजल्ट एंड विजुअलाइज द रिजल्ट, इजंट इट? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट हेडिंग विच इज प्योर साइंस। तो बिहेवियरलिस्ट बाय एंड लार्ज इंसिस्ट ऑन what they call pure science approach. This means that whatever research they make, they should be applied in solving the problems of mankind. Therefore, they make that should be applied in solving the problem of mankind. Therefore, they apply the scientific theory to the to the social problem. Behavioralists also make research in the social problems. तो सीधी सी बात है, अगर हम बिहेवियरिस्ट की बात करें या बिहेवियरिस्ट की बात हम करें, या फिर हम बोले कि जो पॉलिटिकल साइंस का बिहेवियरल अप्रोच है, उसका इंसिस्ट या उसका जो फोकस या उसका जो कंसंट्रेशन है वो प्योर साइंस अप्रोच है। प्योर साइंस अप्रोच क्यों है? क्योंकि ये जो प्योर साइंस अप्रोच है ये ज्यादा एम्पिरिकल है, ये नॉर्मेटिव नहीं है। इसीलिए ऐसा बोलते हैं डेविड एस्टन कि जो पॉलिटिकल साइंस का बिहेवियरल अप्रोच है वो प्योर साइंस अप्रोच है।
आगे वो कहते भी हैं कि दिस मीन्स दैट वट एवर रिसर्च दे मेक दे शुड बी अप्लाइड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनकाइंड। कोई भी रिसर्च अगर हो रही है तो जो मेन समस्या है जो समाज की से जुड़ी हुई है, जो किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई है या फिर लोगों से जुड़ी हुई है, एक्चुअल में उन समस्याओं को रिजॉल्व करना चाहिए। ह्यूमन बीइंग की हमें वेलफेयर की बात करें तो वो तभी होगा जब हमारा जो रिसर्च है नॉर्मेटिव की अपेक्षा वो एम्पिरिकल होगा और उसमें साइंटिफिक बेस होगा। तो हमें साइंटिफिक थियरीज पर ज्यादा जोर देना चाहिए सोशल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन। So finally, this is the last and eighth heading of the behavioral approach of the political science, which says integration. And it says finally, the behavioralists believe that social and political phenomena cannot be studied in the isolation. It is difficult to draw the exact dividing line between man's social, economic, political, cultural, and other activities, and they can be understood only in the wider context of the entire social life of the society. So integration is also very much imperative when we talk about the behavioral approach of the political science, because it provides an opportunity to integrate ourselves to other social science subjects. तो अगर हम political science के अंतर्गत बात करें या political science स्पेशली डिसिप्लिन की बात करें, तो जो अन्य सोशल साइंस सब्जेक्ट्स भी हैं, सोशल साइंस डिसिप्लिन है, उनके साथ पॉलिटिकल साइंस का इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी भी है। और अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो इससे बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हमें उसको रेक्टिफाई करने में मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। साथ ही साथ जो इंटीग्रेशन अप्रोच की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो जो दूसरे सोशल साइंस के अप्रोच हैं या दूसरे सोशल साइंस की कुछ ऐसे कुछ विशेषताएं हैं, उसको भी अडॉप्ट करते हैं, पॉलिटिकल साइंस को और बूस्ट करता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल साइंस आल्सो हैज गॉट द नेचर ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन, इजंट इट? आई एम श्योर दैट ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा आपको हार्ड नहीं लग रहे होंगे, डिफिकल्ट नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि मैंने आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस points in a very simple terms. I have tried myself to make the concept clear for you people. Okay, now if we come to the conclusion, the behavioralists believe in integrated approach, and for this purpose, the political scientists have to study other social sciences like sociology, history, economics, anthropology, etc. Because of the study of political phenomena requires one understanding of how the economic, cultural, and other phenomena in society are unfolding themselves. In other words, it means interdisciplinary approach. तो ये वही बात कर रहा है। अगर हम इस इंटरडिसिप्लिन की अभी टॉपिक की जो हम बात कर रहे थे, जो लास्ट वाली हेडिंग थी उसके अंतर्गत डेविड एस्टा हमें ये समझाने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे अदर सोशल साइंस सब्जेक्ट्स हैं या डिसिप्लिन है, जैसे सोशियोलॉजी की बात वो करते हैं, हिस्ट्री की करते हैं, इकोनॉमिक्स की करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी की करते हैं, तो उसके साथ इसका इंटीग्रेशन पॉलिटिकल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस का इंटीग्रेशन अदर सोशल साइंस सब्जेक्ट के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और ताकि हम और बेहतर तरीके से उसको समझ पाए, उसको डेटा को एनालिसिस कर पाए और जो समस्या है उसका समाधान कर पाए, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो पॉलिटिकल साइंस है और जो अन्य सोशल साइंस सब्जेक्ट्स है उसके बीच में हमारा इंटीग्रेशन मेंटेन रहे। ओके, और ये क्योंकि बिहेवियरल जो अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस का इंटीग्रेशन, जो मैंने आपको इसकी विशेषता बताई, जो इंटीग्रेशन मैंने बताया कि इसका मतलब क्या है, ये पॉलिटिकल साइंस के बिहेवियरल अप्रोच को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट विषय में अगर हम इसको लेके चलें तो ये पॉसिबल नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस को हम केवल इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट या डिसिप्लिन माने और उसको स्टडी करें, तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस एंड ऑल द एफर्ट्स विल गो इन वेन। ठीक है, एट एनी कॉस्ट वी हैव टू फोकस ऑन द कंसेप्ट व्हिच इज इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर डिसिप्लिन्स लाइक सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, साइंस एंड ऑल, ताकि इसकी जो स्टडी को एम्पिरिकल बना सके और इसमें एक साइंटिफिक बेस दे सके। Okay, now this was all about the 8 characteristics which I would say that were given by the David Easton. Now we'll be discussing about our next heading and last heading of this particular topic, which is behavioral approach of the political science. Here we will be discussing about the criticism of behavioral approach. अब सीधी सी बात है, अगर किसी चीज की कुछ विशेषताएं, कुछ मेरिट्स हैं, तो कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर भी इसको स्टडी करेंगे। तो आई विल गो थ्रू ऑल द हेडिंग्स वन बाय वन,
एंड हम देखेंगे कि जो ये बिहेवियरल अप्रोच रहा पॉलिटिकल साइंस का, इसके कुछ डिमेरिट्स कह लीजिए, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि इसके डिमेरिट्स क्या हैं या इसके क्रिटिसिज्म के बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। और जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी चीज़ है, कोई भी डिसिप्लिन है या एनीथिंग, इफ इट हैज गॉट सम मेरिट्स, तो इसका मतलब है कि इट also has got some demerits. So the behavioral approach in political science, which emphasizes empirical and scientific methods to study political behavior, has been subjected to various criticism. सीधी सी बात है, इसका जहाँ ये जो बिहेवियरल अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस का, ये एम्पिरिकल है या फिर साइंटिफिक मेथड्स पे बहुत ज्यादा जोर देता है, उसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। द वन नंबर वन इज ओवर एम्फेसिस ऑन क्वांटिफिकेशंस। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर हम रिसर्च की बात करते हैं तो बेसिकली वी टॉक अबाउट द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। स्पेशली यहाँ पर क्रिटिसिज्म की बात करें तो पॉलिटिकल एनालिस्ट कुछ ऐसे हैं जो जिन्होंने बहुत ज्यादा कह लीजिएगा कि कुछ नेगेटिविटी दर्शाई है, और ये बोला है कि जो बिहेवियरल अप्रोच है वो प्लेसेस टू मच एम्फेसिस, बहुत ज्यादा उन्होंने जोर दिया है या बहुत ज्यादा उन्होंने इस पर इम्फोसिस किया है क्वांटिटेटिव डेटा पर, और जो क्वालिटेटिव डेटा है उसको क्या नाम है, इग्नोर किया है या डिस्कार्ड किया। और सभी को पता है कि जब हम पॉलिटिकल साइंस के नेचर की बात करते हैं तो उसके कुछ सीधी सी बात है, ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस हैज गॉट आर्ट करेक्टरिस्टिक्स, और उसका कुछ साइंटिफिक या उसको कुछ विज्ञानी मानते हैं, कुछ ये भी कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का जो नेचर है वो आर्ट और साइंस दोनों है। तो लेकिन अगर हम ये बात करें तो बिहेवियरल अप्रोच को पूरी तरीके से जो क्वालिटेटिव अप्रोच है उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पर जोर दिया है क्वांटिटेटिव डेटा पर या स्टैटिस्टिकल मेथड्स पर। ठीक है, जिसने कहीं ना कहीं इस चीज को थोड़ा सा, मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग फेवर करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच को, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का दिल भी दुखाया है, अगर मैं बोलूँ कि उन लोगों को थोड़ा सा निराश किया है कि जो बिहेवियरल अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस का हैज वेरी मच emphasized ऑन क्वांटिटेटिव डेटा rather than qualitative data. We move to our next heading, which is neglect of normative issues. Now, as I said earlier, जो ट्रेडिशनल अप्रोच रहा पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल डिसिप्लिन का, पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन का, उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया था फिलोसफिकल बेस पे या फिलोसफिकल प्रिंसिपल पर, तो उसका जो नेचर है वो नॉर्मेटिव है। लेकिन यहाँ पर जो बिहेवियरल अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस का, उन्होंने पूरी तरह से नॉर्मेटिव इश्यूज को नेग्लेक्ट किया है, करने की कोशिश करी है, डिस्कार्ड किया है, विच इज आल्सो कह लीजिएगा major criticism of the behavioral approach of the political science. And आपको देखा भी है, you can go through this line कि the behavioral approach often ignores normative questions about justice, ethics and values in politics. जबकि जो ट्रेडिशनल अप्रोच रहा पॉलिटिकल साइंस का, उसमें जितनी प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो न्याय से, मूल्यों से जुड़ी हुई थी, उसका पीछे नॉर्मेटिव अप्रोच को वो लोग फॉलो करते थे। ठीक है, चिंतन मनन तर्क विश्लेषण आदि के द्वारा या फिर पूर्व या प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के द्वारा, डिस्कशन के द्वारा, विचार विमर्श के द्वारा। जैसे सोक्रेटिस थे तो उनकी द्वंद्वात्मक पद्धति, डायलेक्टिक पद्धति बहुत फेमस थी, यूनान के महान दार्शनिक थे, तो आने वाली समस्याओं को डिस्कशन पे सॉल्व करते थे। लेकिन बिहेवियरल अप्रोच जो रहा पॉलिटिकल साइंस का, उसने इसको डिस्कार्ड किया है नॉर्मेटिव, अगर मैं बात करूं अप्रोच को। नाउ नेक्स्ट वन इज रिडक्शनिज्म। सबसे पहले आप ये बात समझिए, रिडक्शनिज्म का मतलब सीधी सी बात है, किसी चीज को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देना, किसी की इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा कह लीजिएगा घटा देना, बहुत ज्यादा तुच्छ बना देना, ट्राइफल वी कैन से दैट इज बहुत बहुत ही ज्यादा रिड्यूस कर देना। तो दिस अप्रोच टेंड्स टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल फेनोमेना टू सिंपलिस्टिक मॉडल्स एंड वेरिएबल्स व्हिच मे नॉट कैप्चर द फुल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ। सीधी सी बात है, जब हम इसके इस वाले पर्टिकुलर हेडिंग की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत यही चीज निकल कर सामने आती है कि जो ये अप्रोच रहा, बिहेवियरल अप्रोच रहा पॉलिटिकल साइंस का, उन्होंने इसको इतना रिड्यूस कर दिया है इस अप्रोच ने, या उसको संकुचित कर दिया है, इसकी विचारधारा को संकीर्ण कर दिया है कि जो समाज में या सोसाइटी में जो मुद्दे हैं वो पूरी तरह से पूरी सभी एस्पेक्ट्स को कवर करने में कहीं ना कहीं अपने आप को अक्षम पाते हैं। और ये जो आगे बोलता है भी कि विच मे नॉट कैप्चर द फुल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ। तो जितनी भी एक कहते हैं ना कि एज ए होल किसी भी चीज का जब हम स्टडी करते हैं तो एज ए होल उस चीज को हम यू नो
या इंक्लूसिव अप्रोच की हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखते हो उस चीज का यहाँ पर अभाव है बिहेवियरल अप्रोच में, क्योंकि इट इज नॉट कह लीजिएगा एज वास्ट एज ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द पॉलिटिकल साइंस. Next one is lack of historical context. So the behavioral approach can sometimes neglect the historical and cultural context within which political behavior occurs, leading to a limited understanding of political dynamics. सीधी सी बात है, इससे पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोच रहा उसके अंदर जो हिस्ट्री या पास्ट का बहुत ज्यादा अध्ययन करा उन्होंने, और जो उनकी फ्यूचर की या वर्तमान की उस समय समस्या रही उस समस्याओं को रिजॉल्व करने में उनका हिस्टोरिकल का जो उन्होंने स्टडी किया था या विश्लेषण किया था वो उन्होंने उसको बहुत सहायता पहुंचाई, और सीधी सी बात है, जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की तो कहीं ना कहीं जब हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, हिस्ट्री को एनालिसिस करते हैं, तो जो हमारे फ्यूचर प्रॉब्लम्स हैं या हमें फ्यूचर को कहते हैं कि हम और बेटर बनाना चाहें या उन मिस्टेक्स को हम दोहराना ना चाहें जो गलतियां हमारे इतिहास में रही, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आवश्यक होता है. इट इज वेरी मच इम्पेरेटिव टू मेक आवर फ्यूचर सेफ एंड कह लीजिएगा परफेक्ट, और क्वालिटी लाने में और इसको एनहेंस करने में वो बहुत ज्यादा जरूरी है. वो गलतियां दोबारा से ना हो, मिस्टेक्स ना हो, हमें उन कॉन्सिक्वेंस को दोबारा फेस ना करने. बट यहाँ पर जो बिहेवियरल अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस का, वहां पर लैक ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलता है. वो ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं हिस्टोरिकल या हिस्ट्री की चीजों का अध्ययन करने का, या वो इवेंट्स जो हिस्ट्री में या पास्ट में हो चुकी है उसको स्टडी करने का. तो ये भी इसका एक मेजर क्रिटिसिज्म है बिहेवियरल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस का. नेक्स्ट इज ओवर रिलायंस ऑन सर्वेज एंड पोल्स. सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा उन्होंने विश्वास किया, उनका भरोसा है सर्वेज एंड पोल्स एंड ऑल, जो कि कहीं ना कहीं इस चीज को थोड़ा सा मैं बोलूं कि बोझिल बनाता है. heavy reliance on surveys and polls can lead to biases as these methods depend on respondents self reporting and may not accurately reflect the behavior or attitudes. बहुत ज्यादा इस चीज पे विश्वास करना, सर्वे पे विश्वास करना, क्वेश्चन पे विश्वास करना, और जो एक्चुअल जो नेचुरल बिहेवियर है लोगों का या रेस्पोंडेंट्स का उसको इग्नोर करना, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन को मैं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस को वो आधार या वो बेस, या मैं बोलूं कि वो एक कहते हैं पॉजिटिविटी प्रदान नहीं करता है, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच ने, पॉलिटिकल साइंस के ट्रेडिशनल अप्रोच ने प्रदान किया. तो दिस इज आल्सो अ क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियरल अप्रोच ऑफ द पॉलिटिकल साइंस. नेक्स्ट वन इज inadequate attention to power structures. तो critics argue that the behavioral approach may not sufficiently address underlying power structures and inequalities that shape political behavior and outcomes. बहुत ज्यादा inadequate attention है पावर स्ट्रक्चर की तरफ. जो समाज है हमारा उसमें वर्ग भेद तो होता ही है, शुरू से रहा है. हम मानते हैं देयर सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस आर देयर इन आवर सोसाइटी. कोई बड़ा है कोई छोटा है, समानता है. हालांकि इकोनॉमिक स्तर पे कहें या कास्ट सिस्टम की बात करें नहीं होती है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन का ये दायित्व है कि वो समाज में एक सिमिलरिटीज लाए, समानता लाए, इनइक्वलिटीज दे. तो कहीं ना कहीं ये देखा गया कि इस अप्रोच ने वो चीजों में एक समानता, इनइक्वलिटीज लाने में वो अप्रोच थोड़ा सा उतना कह लीजिएगा कि इफेक्टिव नहीं रहा जितना कि ट्रेडिशनल अप्रोच था. क्योंकि मैं फिर कहूंगा उस जमाने में जो हमारे पॉलिटिशियंस थे, जो सोशल एक्टिविटीज थे उस समय के यूनानी, जैसे एरिस्टोटल की बात करें या हम बात करें प्लेटो की या फिर सुकरात की, सोक्रेटिस की, तो इन्होंने जो समाज में समस्याएं आती थी उसका प्रॉपर अटेंशन देना और एक उसको स्टडी करना और ज्यादा विश्वास ना करना, सर्वे या और इस तरह की जो साइंटिफिक मेथड है, लोगों से मिलना, वो थोड़ी सी नजदीक लाता है, उनका समस्या का समाधान करना. तो कहीं ना कहीं समाज के सभी वर्ग में ये चीज सिमिलरिटीज लाती है. उनको ये एहसास होने नहीं देती कि वो किसी भी एस्पेक्ट में अलग है या छूते हैं या नीचे हैं या ऊपर है. तो इस तरह की चीज भी नहीं होनी चाहिए. तो दिस इज आल्सो अ मेजर क्रिटिक्स of I would say that behavioral aspects of the political science. Now we move to our next heading, which is ethnocentrism. Early behavioral studies were based on the Western political system, leading to potential ethnocentric biases when applied to non-Western context. जो हमारा अर्ली बिहेवियरल स्टडीज था, वो जैसे हम बिहेवियरल अप्रोच की बात करें, बहुत ज्यादा ये लोग बेस्ड था वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम पे, और जब उस चीज को अप्लाई किया आगे आने वाले समय में, तो उसने कहीं ना कहीं बायसेस या कह सकते हो आपकी, इट
led to biased kind of thing, क्योंकि सेम चीज को स्टडी करना फिर उसको ये समझना कि वो बिल्कुल सही है बिना कुछ सोचे समझे उसको अप्लाई कर देना, तो ये इट डजंट मेक एनी सेंस। तो किसी भी स्थिति में देखा गया कि जो अर्ली बिहेवियरल स्टडीज वर ऑफन बेस्ड ऑन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल का कुछ सिस्टम है उन्होंने उस चीज को स्टडी किया और सेम चीज को अप्लाई कर दिया, तो जिससे बायसनेस क्रिएट हुई, which led to the biasness in the society among the people. Okay, fragmentation of the political science. It says the behavioral approaches focuses on micro level analysis of individual behavior can lead to fragmentation, making it difficult to develop a coherent, unified understanding of political science as a discipline. ठीक है, once again I will go through these lines, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। The behavioral approaches focus on micro level analysis of individual behavior can lead to fragmentation, making it difficult to develop a coherent, unified understanding of political science as discipline. Political science discipline की अगर बात करें, सोशल साइंस है इसका नेचर, और जो इसका बिहेवियरल एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा माइक्रो लेवल एनालिसिस की बात यहाँ पर कर रहा है, किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करने में या किसी भी इंस्टीट्यूशंस के बिहेवियर को स्टडी करने में अगर हम माइक्रो लेवल एनालिसिस को अडॉप्ट करते हैं या यू नो इसको विस्तार से या मैक्रो लेवल पर इसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो ये कह लीजिएगा इट लीड्स टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस व्हिच इज नॉट गुड फॉर ऑल ऑफ अस, तो मेकिंग डिफिकल्ट टू डेवलप ए कोहेरेंट यूनिफाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन। तो ये भी कहीं ना कहीं इसका क्रिटिसिज्म रहा जो दिया गया एनालिस्ट द्वारा, पॉलिटिकल एनालिस्ट द्वारा, कि और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी भी अप्रोच की बात करते हैं या हम बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशन और लोगों के बिहेवियर को स्टडी करना है, तो एक वास्ट अप्रोच को हम यूज करें। बट ये जो बिहेवियरल अप्रोच है, ये जो इसका जो फोकस है वो माइक्रो लेवल एनालिसिस पे है, ना कि मैक्रो लेवल एनालिसिस पर। ओके, नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ प्रिडिक्टिव पावर। So despite its scientific rigor, the behavioral approach often fails to offer robust predictions about political events and trends, limiting its practical applicability. ठीक है, हालांकि इसका जो साइंटिफिक रिगर, बहुत ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच रहा, बहुत ज्यादा साइंटिफिक मेथड्स पर उन्होंने जोर दिया, एम्फोसिस दिया, एम्पिरिकल डेटा की हम बात करें, हम बात करें एक सिस्टमेटिक वे की, बहुत ज्यादा इन्होंने इस पे जोर दिया, बट ये फेल हो गया थोड़ा सा, कहीं ना कहीं इसमें लूप होल्स रहे कि जो पॉलिटिकल डिसिप्लिन के अंतर्गत हम जो बात करते हैं इवेंट्स की या ट्रेंड्स की या किसी भी इवेंट्स की या प्रॉब्लम्स की, तो उसने कहीं ना कहीं इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा प्रूव नहीं किया, या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये उतना इफेक्टिव नहीं रहा। और आगे इट सेज लिमिटिंग इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी, जो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है या प्रैक्टिकल इसका जो बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अछूता रहा, अनटच्ड रहा। ओके, now next one is behavioral research depends too much on other sciences. So political science is depending on other social sciences, particularly sociology and anthropology, and is borrowing so much from them that it is sorry, that it is feared that political sciences spaces identify integrity and autonomy will be lost. Although an interdisciplinary approach can help in comprehending many political problems, it cannot answer all of the complexity of human behavior. Okay, if I say, if I go through all the contents of this particular heading, so this is the 10th and I would say next heading as far as criticism of this approach is concerned. And as I said, political science is depending on other social sciences, particularly sociology and anthropology, and is borrowing so much from them that it is feared that political science basic identity, integrity and autonomy will be lost. देखिए कितनी अच्छी बात कहते हैं। जो इसका अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें, इसको बड़े सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहूंगा कि जो पॉलिटिकल साइंस ने जो अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच है, उसमें जो इंटीग्रेशन की जो बात करी, या मैं बोलूं कि जो दूसरे सोशल साइंस सब्जेक्ट्स हैं जैसे सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, या बोरिंग सो मच फ्रॉम, यानी कि दूसरे सोशल साइंस सब्जेक्ट से इतना कुछ ले रहा है या सीख रहा है या उसको फॉलो कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसको अप्लाई कर रहा है, कि कहीं ये डर है लोगों को पॉलिटिक या पॉलिटिक जो हमारे बहुत बड़े एनालिस्ट्स हैं उनमें, या जो हमारे फिलोसफर हैं,
कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पॉलिटिकल साइंस जो डिसिप्लिन है उसकी खुद की बेसिक आइडेंटिटी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाए। अब हर किसी चीज की एक आइडेंटिटी होती है, हर कोई भी चाहे वो इंसान हो चाहे सब्जेक्ट हो, वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज यूनिक आइडेंटिटी। तो वो रहना, वो एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है। तो ये जो बिहेवियरल एस्पेक्ट से अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस का, कहीं ना कहीं इतना ज्यादा इस चीज पे जोर देता है और चीजों को अदर सोशल साइंस जो डिसिप्लिन उसको बोरो करता है कि खुद की आइडेंटिटी खो ना जाए, डिसअपियर ना हो जाए। तो वो उस चीज पे ध्यान ध्यान नहीं देता, जबकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस चीज को भी वो दिमाग में रखे, ध्यान में रखे। ओके, नाउ नो एम्फेसिस ऑन अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, these are the some very simple points and very limited headings which needs no, I would say, further explanation, because it has got its own explanation in the headings. Like 11th, I would say, next heading, no emphasis on applied research. So behavioralist place too much focus on study into human political behavior but do not apply that research to present concerns. इट इज नॉट रियली यूजफुल देयर। तो इतना ज्यादा एम्फोसाइज किया इन्होंने अप्लाइड रिसर्च पर, तो कहीं ना कहीं इनको ये थोड़ा सा आशंका भी है कि इसकी जो यूटिलिटी है वो कहीं ना कहीं डिसअपियर ना हो जाए। बिहेवियरलिस्ट अप्रोच जो है उतना मत इतना फोकस करते हैं स्टडी इनटू ह्यूमन पॉलिटिकल बिहेवियर बट डू नॉट अप्लाई दैट रिसर्च टू प्रेजेंट कंसर्न्स। एक्चुअली जो भी चीज है, जो भी स्टडी की बात हो रही है वो रिलेवेंट होना चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसकी कुछ यूटिलिटी होनी चाहिए। रिसर्च का तो सबसे बड़ा मोटो यही है कि इफ आई डू एनी रिसर्च देयर मस्ट बी यूटिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर रिसर्च। तो इतना ज्यादा एम्फोसाइज किया गया है अप्लाइड रिसर्च पर, तो कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि ये इतना यूजफुल नहीं रहता। तो इसका जो स्वरूप है वो उतना स्वरूप इतना यूजफुल नहीं रह जाता, यूटिलिटी इसकी हास होती है कहीं ना कहीं। लास्ट वन इज लिमिटेड नॉलेज। तो behavioral experiments provide only a limited understanding of human political behavior. It does not provide real knowledge to solve the world's pressing challenges. तो सीधी सी बात है, जो बिहेवियरल अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस का, अगर हम नॉलेज की बात करें तो एक तो हो गया वास्ट नॉलेज, एक हो गया लिमिटेड नॉलेज। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द आई वुड से behavioral approach of the political science discipline, it does not provide real knowledge to solve the world's pressing challenges. There are so many problems occurring day by day in our society, in nations. ठीक है, if I talk about the nationally or internationally, तो अगर हम बिहेवियरल अप्रोच की बात करते हैं तो ये इतनी वास्ट नॉलेज को सपोर्ट नहीं करता है कि उन सभी समस्याओं के समाधान में या सभी समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को आधार प्रदान करने में सक्षम हो पाए। तो इसका जो कहीं ना कहीं मैं बोलूं कि लिमिटेड एस्पेक्ट्स हो जाता है। अगर मैं बोलूं डेविड ईस्टन के अनुसार, जो उन्होंने या अन्य पॉलिटिकल एनालिस्ट्स ने जो मैं बोलूंगा क्रिटिसाइज किया है इस चीज को, तो उसमें एक ये भी शामिल है, इंक्लूड है, विच इज लिमिटेड नॉलेज। एंड मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे, क्योंकि knowledge must be as vast as possible. Okay, so this way we come to the end of our today's session, which was the second part of the political approach of the political science. Sorry, behavioral approach of the political science. We have discussed earlier in part one what it was all about. In today's session, which was the second part of the political science, yeah, which was the second part of the political approach, sorry, behavioral approach of the political science, yeah, behavioral approach of the political science. I've explained everything, and I did my best in explaining and making the concept clear for you people. We discussed the characteristics and all the topics and headings which have been suggested by David Easton. We also gone through the some demerits of the behavioral approach of the political science, or should I say the criticism which have been given by various politicians, various political analysts, yeah, various philosopher. So we have discussed first and second part, and I think you would have enjoyed the whole session. And the concept, I mean to say that behavioral approach of the political science would have been clear for you people. So this way we come to the end of today's session. And thank you very much for having me, and see you again in our next session of political theory. And till then, have a nice day. Thank you very much. Bye bye.